Good morning, my dear students as well as honorable guardians. It is known to everyone we are all suffering from the COVID-19 dangerous virus. And in order to this, we have to decide that we should to give all students an education facility that's provide our students a smooth and a very smoothly and a very beautiful source of education to our students. It is known to our students we are unable to give you a beautiful platform, and that platform is a school. And due to coronavirus, it is also known as COVID-19, we are all unable, and in this order to give a platform of school, I can't give you a very beautiful visions of this school. Today, we are going to discuss about the first chapter of English Honeycomb, and the name of that first chapter is 3 questions. And 3 questions, first part would be discussed by me, and my dear students, you have to listen carefully about this chapter and gain the all kinds of moral of this chapter. 3 questions is very important chapter in our syllabus of Honey Tea English Reader Book. In this chapter, we shall discuss about the main value of our life. Before you read, I would like to summarize the chapter. In this chapter, we shall discuss about a certain king. A king has 3 questions and he is seeking answer to them. What are the questions? Does the king get what he wants? मेरे प्यारे छात्राओं, एक राजा के जहन में, एक राजा के दिमाग में 3 प्रश्न आते हैं और वह उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए काफी उत्सुक होते हैं। वे प्रश्न क्या है? वे प्रश्न क्या है? क्या राजा उन प्रश्नों के जवाब जो जानना चाहता है उसे प्राप्त करता है या किसी से जानकारी प्राप्त कर पाता है? इन सारी चीजों के बारे में हम 3 क्वेश्चंस चैप्टर के पार्ट 1 में चर्चा करेंगे। पार्ट 1 के बाद यदि हमें लगे कि इसको अगर एंड करना है तो इसके अगले पार्ट तक भी जाएंगे। तो हम लोग सर्वप्रथम 3 क्वेश्चंस के पार्ट 1 का जिक्र करेंगे यहाँ, और वो ये है, The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, and last and third, what is the most important thing for him to do? एक राजा 3 प्रश्न इस चैप्टर के प्रथम भाग में शुरुआत होती है कि एक राजा, जो एक खास राजा थे, उनके दिमाग में यह विचार आया, सोच आया कि वह कभी नहीं असफल होंगे अपनी जिंदगी में यदि वह जान जाएंगे 3 चीजों को जो हर एक मनुष्य के
व्यवहारिक जिंदगी में होती है उसके बारे में। और वे जो प्रश्न 3 है वो इस प्रकार है। What is the right time to begin something? किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है? दूसरा, which people should he listen to? किस प्रकार के लोगों की बातों को राजा को सुनना चाहिए जिससे उसकी जिंदगी में कभी असफलता हाथ न लगे। तीसरा और अंतिम, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, What is the most important thing for him to do? कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य उस राजा को क्या करना चाहिए जिससे कि वह अपनी जिंदगी में कभी असफल न हो। Hence, my dear student, you listen about that 3 things that king wanted to know. That 3 things or that 3 questions were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? Okay? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसीलिए राजा ने क्या किया कि अपने संवाददाता को पूरे राज्य में भेजा कि आप जाओ और मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश करके लाओ जो मेरे दिल में, मेरे अंतरात्मा में जो 3 प्रश्न उभर रहे हैं उसका वह सटीक और सही जवाब दे दे बिना मेरे द्वारा बताए गए उन प्रश्नों को। और उन्होंने कहा कि जो कोई व्यक्ति इस प्रश्न की जवाब दे देगा उसे ये कहना कि हम राजा ने यह वचन दिया है कि उसे एक बहुत बड़ी रकम देंगे इस 3 प्रश्नों के जवाब देने के उपलक्ष्य। Many wise came to the king, but they all answered his questions differently. In reply to the first question, some say the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. Others say that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. इस 3 प्रश्न के जवाब देने के क्रम में कई बुद्धिमान लोग वहां राजा के पास उनके उस राजा के राज्य से आए, लेकिन उन सबों ने राजा के अंदर जो 3 प्रश्न चल रही थी उसका अलग अलग जवाब दिया। किसी का भी आंसर सेम नहीं हुआ और उन आंसर से राजा कतई संतुष्ट नहीं हुआ। सर्वप्रथम एक विद्वान व्यक्ति राजा के प्रथम प्रश्न के जवाब में बोला कि राजा को एक समय सारणी का रूपरेखा तैयार करना चाहिए और तब उस समय सारणी के अनुसार राजा को बहुत ही सख्ती से पालन करना चाहिए। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे वे हर एक कार्य कर सकते हैं अपने एक उचित समय पर। दूसरे ने कहा कि यह असंभव होगा राजा के लिए कि वह पहले ही समय से पहले ही यह सोच ले कि उन्हें क्या करनी है।
in advance the right time for doing something. Really? दूसरों ने कहा कि राजा के लिए असंभव है कि वह सही समय का तलाश कोई कार्य को करने के लिए पहले कैसे वह सुनिश्चित कर लेगा। राजा को चाहिए इसके लिए कि वह हर एक कार्य को बहुत ही सूक्ष्मतापूर्वक और गहनतापूर्वक उसे देखे और इस क्रम में उसे अपनी जो फुलिश प्लेजर है, बेवकूफी भरी जो आनंद है, अनावश्यक आनंद है, उसका त्याग करना होगा और हमेशा उसे वही करना चाहिए जो कि उसके नजर में उस वक्त अति आवश्यक मालूम प्रतीत होता। Yet others say that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. फिर दूसरों ने कहा, उन बुद्धिमान व्यक्तियों में से दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि फिर भी यह राजा के लिए काफी आवश्यक होगा कि वह बुद्धिमान मंत्रियों का एक मंत्री परिषद का गठन करें जिससे उन्हें उचित समय पर कोई कार्य करने में काफी सहूलियत होगा। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. यह इसीलिए क्योंकि एक व्यक्ति को यह निर्णय लेने में काफी कठिनाई होगी कि वह क्या सही समय पर कार्य कोई करे, इसीलिए उस एक व्यक्ति को इसके लिए दूसरों से सहायता लेना पड़ेगा कि सही समय हर एक कार्य को, प्रत्येक कार्य को करने के लिए क्या है। But then others say that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. And only magicians could do that. The king, therefore, would have to go to magicians. लेकिन दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो बहुत अति आवश्यक हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके व्यवहारिक जिंदगी में आपने सोच रखा है कि कल मुझे कोई कार्य करना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट कार्य अभी आ गया, तो उसके लिए आप क्या करोगे? वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जिंदगी में हम कार्य को डिवाइड करते हैं 3 प्रकार से, वर्तमान, भूत और भविष्य। तो इसमें माना जाता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वह कार्य होता है वर्तमान, जो अभी आपको करना है। तो वही बुद्धिमान व्यक्तियों ने कहा आपस में ही राजा के सामने कि देखिए राजा को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर कोई यदि कार्य जो आप पहले ही सुनियोजित ढंग से यह सोच लिए हैं कि हमें करना है, लेकिन कोई ऐसा कार्य आ जाता है आपके जहन में, आप कभी प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि आपको कहीं जाना है, यू हैव टू गो एनीवेयर एंड यू हैव प्लान्ड इट बिफोर 2 days ago, 3 days ago, तो उस समय आप क्या कीजिएगा? अगर आपको कोई इंपोर्टेंट काम आ जाए तो यू हैव टू पोस्टपोन दैट प्लान, आपको उस कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ जाता है। तो इस क्रम में दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी अति आवश्यक होता है करना, और ये चीजें जो हैं वह किसी भी विद्वान व्यक्तियों के समूह के निर्णय का इंतजार नहीं करेगा। यू नो, टाइम एंड टाइड्स नेवर वेट्स एनीवन। समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार कभी नहीं करता। ठीक उसी वक्त आपके सामने कोई ऐसा इंपोर्टेंट काम आ जाएगा जो आपके लिए वो करना अति ही नहीं अति आवश्यक होता है।
इसलिए उन्होंने कहा कि बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह आप कुछ नहीं कर पाए, और इस क्रम में, इस निर्णय के लेने के क्रम में कि सही समय क्या है, अभी क्या करना चाहिए सही में, राजा को सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उस वक्त उसे भविष्य की भविष्यवाणी करना होगा। अर्थात राजा को ऐसी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी जो व्यक्ति राजा को यह बताए कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। और ये भविष्य बताएगा कौन? तो उस बुद्धिमान व्यक्तियों के समूह ने कहा कि ये बताएगा जादूगर। कौन बताएगा? जादूगर बताएगा। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस। इसलिए उस विद्वान के समूहों ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? तो वो करेगा जादूगर, और इसीलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, a few others choose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. उनके दूसरे प्रश्न के जवाब में अभी इस दूसरे प्रश्न के पहले हमने अभी चर्चा जो किया वो ढेर सारे चर्चा किया राजा के 3 प्रश्नों के प्रथम प्रश्न के बारे में। ठीक है, अब हम चर्चा कर रहे हैं राजा के उन 3 प्रश्नों के द्वितीय प्रश्न के बारे में कि उनका क्या जवाब वो वाइज मैन जो है दे रहे हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न के जवाब में कुछ ने कहा कि लोगों का जो सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक जो कार्य होता है, जो कि राजा को करने के लिए कहना चाहिए उनके काउंसलर्स के द्वारा, वो है कि वह एक ऐसे व्यक्तियों का एक मंत्री परिषद का गठन करे जो ये सारा चीज जानता हो, और वो जिसमें उसके हर एक वर्ग के लोग हैं। जैसे वो वर्ग के कौन कौन से लोग होंगे? अदर से द प्रीस्ट्स। पहला व्यक्ति ने कहा काउंसिलर्स अर्थात बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह। दूसरे ने कहा नहीं, पुजारियों का समूह चाहिए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, चिकित्सकों की जो चिकित्सक हैं उनकी आवश्यकता होगी। एंड येट others said that his soldiers were the most necessary. फिर दूसरे ने कहा कि राजा के लिए उसके जो सेनाएं हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। To the third question some said science. फिर तीसरे, अब हम लोग तीसरे प्रश्न के जवाब के बारे में चर्चा करेंगे जो कि उस राजा के मंत्री परिषद के समूहों के द्वारा किया गया था। तीसरे क्वेश्चन के लिए कुछ ने कहा कि हमें विज्ञान की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? विज्ञान की। फिर दूसरों ने कहा लड़ाई की, युद्ध की आवश्यकता हो सकती है। फिर तीसरे ने कहा नहीं, धार्मिक पूजा की। अगर धार्मिक पूजा के संपर्क में हम लोग रहेंगे तो ये कार्य आसान हो जाए। As the answer to his questions was so different, the king was not satisfied and gave no reward. चूंकि उनके अर्थात राजा के प्रश्नों के जवाब उन बुद्धिमान व्यक्तियों के समूह के द्वारा अलग अलग तरीके से दिया गया, इसीलिए राजा ने किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को कोई पुरस्कार ही नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. और इन बुद्धिमान व्यक्तियों के समूह के अलावे के बदले वह गया एक तपस्वी एवं बुद्धिमान हर्मिट के पास, जो कि अपने ज्ञान के लिए पूरे राजा के राज्य में जाना जाता था। The hermit lived in a wood which he never left. हर्मिट उस जंगल में रहता था
जहां से वह कहीं भी नहीं जाता था। So no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. उसने राजा ने देखा कि वहां उस जंगल में एक सामान्य साधारण व्यक्ति था, इसलिए राजा भी अपना वेश बदल लिया और वह भी साधारण कपड़ा धारण कर लिया और तब उस हर्मिट के पास गया। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. इससे पहले कि वह हर्मिट के झोपड़ी के नजदीक पहुंचते, राजा अपने घोड़ा को छोड़ दिए और अपने अंगरक्षक को भी और अकेले हर्मिट के पास गए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went alone. Okay? As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा हर्मिट के झोपड़ी के नजदीक आया तो राजा ने देखा कि हर्मिट अपने झोपड़ी के बगल में खेत में गड्ढा खोद रहा था, जिसको कि हम अपने साधारण से बोलचाल की भाषा में यूं कहे तो कुदाल चला रहा था। He greeted the king and continued digging. और जैसे ही राजा उसके पास आया तो हर्मिट ने उसका अभिनंदन किया, लेकिन अपना कार्य करना जारी रखा। और वह कार्य क्या था? झोपड़ी के बगल में कुदाल से जमीन को अर्थात खेत को खोदना। The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. हर्मिट बूढ़ा और थका हुआ था, और चूंकि वह कार्य जो करता था तो वह बहुत सांस लेता था। जैसे हकम जाते हैं हम लोग अपने साधारण से कार्यक्रम कोई भी कार्य करते हैं, तो जब फिजिकली कार्य करते हैं तो हमारी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है, सेम एज hermit. The king went up to hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा गया हर्मिट के पास और कहा, हे ऋषि, हे तपस्वी, हे बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का जवाब ढूंढने आया हूं। How can I learn to do the right thing at the right time? कैसे मैं सीख सकता हूं सही समय का अनुप्रयोग करना सही कार्य के लिए? Who are the people I need most? वैसे कौन व्यक्ति हैं हमारे लिए इस संसार में जिसकी आवश्यकता मुझे बेहद जरूरत और अति आवश्यक होगी, जिसकी बातों को मैं सुनूं और उन्हीं के द्वारा बताई गई बातों का मैं हमेशा प्रयोग करूं, अनुकरण करूं। तीसरा, what affairs are the most important? हमारे लिए हमारे राज्य में राजा ने हर्मिट से इन सारे प्रश्नों के जवाब मांग रहा है और उनसे ढूंढ रहा है कि हमारे लिए कौन सा कार्य जो है सबसे अति महत्वपूर्ण होगा। The hermit listened to the king but did not speak. हर्मिट ने राजा की बातों को सुना लेकिन कुछ नहीं बोला। He went on digging. वह अपना कार्य करते गया, खोदते गया। You are tired, said the king. Let me take the spade and walk in your place. आप थक गए हैं, हे वृद्ध बुद्धिमान तपस्वी व्यक्ति, आप थक गए हैं। राजा ने कहा, मुझे आप अपना कुदाल दे दें और आपके स्थान पर मुझे कार्य करने दें। Thanks a lot, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. धन्यवाद हे राजन, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और यह बात कहते हुए और हर्मिट जमीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions.
जब राजा ने 2 क्यारी, खेत में क्यारी जानते हैं ना, मेर होती है, वो मेर, जो 2 मेर राजा ने खोद दिया, गड्ढा कर दिया कुदाल से, तब वह कार्य करना बंद कर दिया और अपनी उन तीनों प्रश्नों को फिर से हर्मिट से दूरा। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now rest and let me walk." हर्मिट कोई उत्तर नहीं दिया हर्मिट, लेकिन उत्तर देने के बदले वह खड़ा हो गया, उठ खड़ा हो गया और अपनी हाथों को फैलाते हुए और कहा, हे राजन, आप मुझे मेरा कुदाल दे दें और आप अब आराम फरमाएं और मुझे अपना कार्य करने दें। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजन ने उसे कुदाल नहीं दिया और खोदना जारी रखा, अर्थात वह खोदने का कार्य फिर से शुरू कर दिया। One hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." 1 घंटा जब गुजर गया, फिर 1 घंटा के बाद दूसरे घंटा भी गुजर गया, तो राजन को क्रोध आया, गुस्सा आया, और चूंकि दिन ढल रही थी, सूर्यास्त हो रहे थे, सूर्य जो है वृक्षों के पीछे अपने आप को छिपा रहे थे, अंत में राजा ने कुदाल को जोर से जमीन पे पटका और कुदाल फंस गया जमीन से, और राजन ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी हर्मिट, मैं आपके पास उन 3 प्रश्नों के जवाब के लिए आया है, ना कि आपके यहां आपकी खामोशी को सुनने आया है। यदि आप मुझे मेरे उन 3 प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं, तो कृपया करके मुझे ये कह दें कि मैं आपको जवाब नहीं दूंगा और मैं वापस अपने घर को चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. ठीक उसी वक्त हर्मिट ने राजा को उस ओर इशारा करते हुए कहा, हे राजन, देखो कोई दौड़ते हुए हमारे तरफ आ रहा है। And my dear students, here is end up the part 1 of English Honeydew, chapter 1. The name of that chapter, 3 questions. Now we shall discuss about the part 2. Okay, so wait and watch, and I'm just going to write down here part 2. Sorry my dear students, little bit mistake here, part 1 and part 2. Okay, so now we shall discuss about the chapter 1, 3 questions, part 2, and there is a question in your minds that how can I solve the comprehension check? Don't worry my dear students, I will provide you all the answer questions of every comprehensions as well as the main questions. Okay, so don't worry about it. So now we are going to discuss about the part 2 of lesson 1, book Honeydew, class 7. The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा, जब वह हर्मिट ने कहा राजन को, तो राजन मुड़ के देखा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला व्यक्ति दौड़ते उनके पास आ रहा था. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. वह अपनी हाथों से, कौन? जो दौड़ते हुए आ रहा था राजन की ओर, वह व्यक्ति दाढ़ी वाला अपनी हाथों से पीठ को दबाए हुए था और उसके पीठ से जो है खून बह रही थी. When he reached the king,
He fainted and fell to the ground. जब वह दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा के पास पहुंचा, राजा के पास पहुंचते पहुंचते वह मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, अचेत हो गया और गिर गया जमीन पर. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. फिर राजन और हर्मिट दोनों मिलकर के उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के कपड़ों को हटाया और पाया कि उसके पेट में एक बड़ा सा घाव था. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा धोया और ढक दिया अपने रुमाल से उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के पेट के ऊपर, ताकि उसके बह रहे रक्त का जो गाढ़ापन है, उसका जो रुकावट है, पैदा हो सके और खून फिर ना बहे. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. राजा ने पुनः से दूसरा कपड़ा, एक कपड़ा खून से लथपथ हो गया, फिर दूसरा कपड़ा उसके पेट पे डाला ताकि पूरी तरह से खून बहना बंद हो जाए. और तब तक दबाए रहा जब तक कि उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के पेट से खून का जो श्राव है, बहाव है, वह बंद न हो गया. The man felt better and asked for something to drink. जब उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के खून के जो श्राव है, रक्त श्राव है, वह बंद हो गया तो वो बहुत बेहतर महसूस किया और उसने कहा कि मुझे कुछ पीने के लिए मिलेगा. The king brought fresh water and gave it to him. राजन तुरंत झोपड़ी से ताजा पानी लाए, साफ पानी लाए और उन्हें पीने के लिए दिया. By this time the sun had set and the air was cool. इस वक्त तक सूरज जो है अस्त हो चुकी थी और अब ठंडी ठंडी शाम के वक्त की हवा जो है बहने लगी थी. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा हर्मिट के सहायता से उस घायल व्यक्ति को ले गया झोपड़ी में और उसे बिछावन पे सुला. The man closed his eyes and lay quiet. वह आदमी अपनी आंखों को बंद कर लिया और शांति से उस हर्मिट के बिछावन पे सो गया. The king, tired by his walk and the walk he had done, lay down on the floor and slept through the night. राजन चूंकि वो भी एक यात्रा करके घोड़े पे सवार होकर के आए थे हर्मिट के पास, वह भी थके हुए थे और आने के बाद तुरंत उन्होंने हर्मिट का गड्ढा भी खोदा था खेत का और इसलिए वह भी थक गए और इतने थक गए कि वह उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के बिछावन के बगल में फर्श पर ही सो गए. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. लेकिन जब राजन जगा, वह कई मिनट पहले की बात थी, वह याद कर सकता था. कई मिनट पहले की बात कहने का मतलब कई मिनट पहले ये घटना हुई थी जो उन्होंने रिड्रेस्ट किया था, पानी से धोया था उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के घाव, उसके बारे में वह याद कर सके कि कहां वह थे और वह अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था जो कि बिछावन पर उन्होंने लेटाया था उसे और अभी भी वह लेटा हुआ है. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. हे राजन, मुझे क्षमा कर देना. वह दाढ़ी वाले आदमी ने एक लड़खड़ाती हुई आवाज में, एक सांत्वना भरी आवाज में बोला, I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. जब राजन जागा और जब यह बात हर्मिट ने कहा, तब राजन ने कहा, हे वृद्ध व्यक्ति, मुझे आपकी क्षमा के लिए कोई कारण दिख नहीं रहा है. मैं आपको क्षमा क्यों करूं? आपने मुझे क्या बिगाड़ा है? किस कारण से मैं आपको क्षमा करूं? मुझे तो कोई जान और मालूम प्रतीत नहीं होता है. You do not know
me, but I know you. हे राजन, वह दाढ़ी वाला वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं. I am that enemy of yours who swore revenge on you. मैं वही दुश्मन हूं आपका जो यह प्रतिज्ञा लिया था, कसम खाया था कि मैं आपको अपने भाई एवं संपत्ति हड़पने के लिए आपको जान मार करके प्रतिशोध का बदला लिया. क्योंकि राजन ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति के भाई को मार दिया था और उसके सारे संपत्ति पर कब्जा कर दिया था. Because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मैं जानता था कि आप अकेले गए हैं हर्मिट से मिलने के लिए उस घने जंगल में. मेरे गुप्तचर ने मुझे बताया था आपके अकेले हर्मिट के पास जाने के बारे में, और तभी मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं आपको मार दूंगा जब हर्मिट से मिल के वापस आप घर आने के क्रम में होंगे तब. But the day passed and you did not return. लेकिन दिन गुजर गए और आप वापस नहीं आए. But the day passed and you did not return, so I left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. जब मैं निकला उस छुपे हुए स्थान से, तो आपके अंगरक्षक जिसे आपने वापस कर दिया था घर जाने के लिए घोड़े के साथ, वह मुझे पहचान लिया और वह मुझे भली भांति पहचान लिया कि मैं राजा का दुश्मन हूं और मैं राजा का कोई न कोई अनहित आज करने वाला हूं, और इसीलिए उसने मुझे घायल कर दिया, इस अवस्था में मुझे कर दिया. हे राजन, इसीलिए मुझे क्षमा कर. ये किसने कहा? वो दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा. किससे कहा? राजन से कहा. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे किसी तरीके से बच के निकल के आपके पास आया हूं, लेकिन मैं तो मर ही जाता यदि आपने मेरे घाव पर मलहम पट्टी नहीं किया होता. मैं तो मर ही जाता हे राजन यदि आप मेरे घाव पर मलहम पट्टी नहीं किया होता. इसलिए मुझे आप माफ कर. I wish to kill you and you have saved my life. What a coincidence here, my dear student. So, you should also remember one thing. Never think others about their bad. कभी भी आप दूसरों की अनहित के बारे में मत सोचना, क्योंकि वो अनहित कहीं न कहीं आपके ऊपर आ जाएगा. इसलिए in the eyes of Almighty God, we are brothers and sisters. All the tiniest creature on this earth is same as I, or we are all. इस पृथ्वी पर एक चींटी समान छोटे से छोटी प्राणी भी हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर की नजर में जितना महत्व ईश्वर हमें देते हैं उतना ही देते हैं उस प्राणी के बारे में जो बहुत छोटा तो है, लेकिन उसमें भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है. इसलिए किसी के बारे में आप अपने जिंदगी में कभी भी अनहित नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप जब सोच लेंगे इस कार्य को तो आपको बहुत ही इसकी गलत खमियाजा होगा. माय डियर स्टूडेंट, I will continue about this story. उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, मैं आपको जान से मारने की इच्छा रखता था, लेकिन आपने मेरी जिंदगी को बचा लिया. ये कैसी विडंबना है. अब यदि मैं इस पृथ्वी पर जितने दिनों तक जीवित रहूंगा, ईश्वर मुझे जितने दिनों तक जीवित रखेंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा. सबसे विश्वसनीय एवं प्रतिष्ठित इस राजन के चरण कमलों में एक तुच्छ प्राणी के
and will order my sons to do the same. और मैं वही अपने संतानों को, अपने पुत्रों को आदेश दूंगा जो मैं करूंगा जिंदगी भर, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, कि आपकी वह सेवा करे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से. Forgive me, मुझे आप माफ कर दें, मुझे आप माफ कर दें हे राजन, अब मुझे माफ कर दें. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend. राजन बहुत प्रसन्न हुआ कि ये कैसी विडंबना है, अय्या हम अपनी दुश्मन से इस तरीके से हम कंप्रोमाइज कर लिए, इतनी आसानी से पैचअप कर लिए, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपने इस सम्राट होने के क्रम में. राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वह एक दुश्मन को एक दोस्त के रूप में जीत लिया था. इससे बेहतर और क्या हो सकता है. इसकी खुशी के पीछे यही कारण था. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and the promise to give back the man his property. वह सिर्फ उसे क्षमा ही नहीं किया. देखिए, टेट्स फॉर टैट, जैसे को तैसा. यहां क्या हुआ, वह दाढ़ी वाले आदमी ने उसे क्षमा मांगा. उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि राजन ने उसकी पूरी संपत्ति दे दी, जो राजन ने उसके भाई को मार करके और हथियाया था, कब्जा किया था. तो सिर्फ वह उसे क्षमा ही नहीं किया बल्कि उसे डॉक्टर भेजा उसकी देखभाल करने के लिए. उसे यह वचन दिया कि वह वापस उसकी सारी संपत्ति को कर देंगे. ठीक है. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his question. The hermit was on his knees, sowing seeds in the beds that had been dug. Thus said, "For the last time, I beg to answer my questions wisely." जब राजन जाने लगा, छोड़ करके उस आदमी को, और वह व्यक्ति जो दाढ़ी वाला था वह राजा के पास गया और चारों तरफ देखा हर्मिट के. इससे पहले कि वह जाता, उसने एक बार और इच्छा जाहिर किया कि हम पूछ लेते हैं उन प्रश्नों के जवाब जो वह जानना चाहता था हर्मिट से. हर्मिट अपने घुटनों के बल बीज बो रहा था खेत में, उस क्यारी में जो वह उसने खोदा था एक दिन पहले. राजा गया हर्मिट के पास और कहा कि अंतिम बार मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे उन 3 प्रश्नों का जवाब बता दें, अन्यथा मैं चला जाऊं. तब हर्मिट ने कहा, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुमने पहले ही उसका उत्तर प्राप्त कर लिया है. और वह खोदने लगा झुक करके अपने जमीन को और बीज बोने लगा. कैसे? राजा ने कहा, कैसे? हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैं कैसे अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर लिया है. What do you mean? आपका कहने का क्या मतलब है? Do you not see? क्या आपने नहीं देखा? हर्मिट ने उत्तर दिया, यदि आप मेरी कमजोरी के ऊपर, मेरी दुर्बलता के ऊपर दयालुता नहीं दिखलाई होती कल, और आपने उन क्यारियों को मेरे लिए खोदा नहीं होता, तो आप चले गए होते. और यदि आप चले गए होते, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. आपके ऊपर वह आदमी आक्रमण कर देता और आप क्या होते, मर जाते और आप हमसे दूर हो जाते. इसलिए द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स. इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था आपके लिए वह था उस वक्त गड्ढा खोदना. एंड आई वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैन, और मैं वह महत्वपूर्ण आदमी था जिसकी बातों को आपको सुनना था, और आपने सुना भी बखूबी. And I was the most, and to do me good was your most important business. और सबसे महत्वपूर्ण कार्य था आपको जो मैंने कहा करने के लिए वो करना. उसके आगे afterwards when the man ran to us, जब वह आदमी आया हमारे तरफ, the most important time was when you were caring for him. सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब आपने उसकी देखभाल किया, क्योंकि यदि आप नहीं देखते, उसकी घाव पे मलहम पट्टी नहीं करते, तो वह बिना आपसे शांति किए बगैर मर जाता.
सो ही वॉज द मोस्ट इंपोर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था आपके लिए उस समय। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस, आपने उसके लिए जो किया वही आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ, हमेशा यह याद रखें वर्तमान में जो आपने काम किया, जैसे अभी जो मैं कर रहा हूं आप जो कर रहे हैं वही सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। इट इज समय होता है। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि वर्तमान में ही हमें कोई भी कार्य को करने की शक्ति होती है, क्षमता होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, और सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक व्यक्ति वह होता है जिसकी जो आप उस क्षण काम करते हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर विल मेट anyone else. The most important business is do that person good, because we were sent in this world for that purpose alone. That's all my dear students. इस तरह से इस पाठ का समापन होता है। अंत में वह हर्मिट कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो बिजनेस होती है, आपके लिए कार्य होती है, वह व्यक्ति के लिए कि आपने उस व्यक्ति की भलाई और अच्छाई किया, क्योंकि हम लोग इस संसार में इसीलिए भेजे गए हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा कि हम अकेले उस उद्देश्य को पूरा करें और अपने कार्य को समाप्त करें। दैट्स ऑल। थैंक्स अ लॉट।